the last theorem for this chapter, superposition theorem. Okay, write down statement. ये visible है? Is it visible? नो मैम, ब्लर है। Yes. ब्लर है मैम। अभी मैम आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं मैम। 1 मिनट, मैं अटेंडेंस मार्क करती हूँ। मैं डिक्टेट कर रही हूँ। राइट डाउन। इट स्टेट्स दैट in a linear network containing more than one independent sources, comma, the resultant current in any element is the algebraic sum of the current of the currents that would be produced by each independent source acting alone, comma, all the other independent sources being replaced by their respective internal resistances. लिखा स्टेटमेंट? यस मैम। हाँ, somebody read. Read that statement. कोई तो भी रीड करो. Yes, what is that statement? Roll number 15. Yes, ma'am. Read superposition theorem statement. It states that in a linear network containing more than one independent sources, the resultant current in any element is the algebraic sum of the currents that would be produced by each independent sources acting alone, all the other independent sources being replaced meanwhile by their respective internal resistance. Yes. रवि सिंह है क्या आपके पास? Yes, ma'am. हाँ, ओके. ठीक है. हाँ, गुड. नाउ सी, दिस इज आवर लास्ट concept of this chapter. इसके बाद ये खत्म हो जाएगा. Okay. Now take down one numerical. Write down. Find current through
3 ohm resistance by using superposition theorem. Find current through 3 ohm resistance by superposition theorem. हम ये स्टेटमेंट ना with the help of this circuit we will see what is that. Draw this diagram. Yes, draw किया. Done. Yes, ma'am. Yes. Okay. Required answer is from which resistance? Required answer is from which resistance? 3 ohm. 3 ohm. Okay. Now this is the superposition theorem. This theorem states that it is applicable when circuit having more than one sources. ये theorem कब apply होता है? Circuit having more than one sources. अभी बताओ इसमें कितने sources है ये circuit में? How many sources here? Yes. How many sources? Tell me fast. Two sources. And both are which source? Voltage or current? Voltage. voltage Voltage source. ठीक है? Both are voltage sources. So in a linear network containing more than one sources, the resultant current. अभी resultant current किससे पूछा है अभी ये न्यूमेरिकल में? Resultant current किससे पूछा है? 3 through ohm. So this is our final current. हाँ, हमें current कौन सा निकालना है? I 3 ohm. Okay. The resultant current would be each source acting alone. Each source acting alone यानी अभी इसमें केस हो एक फर्स्ट केस क्या होता है? 35 volt is acting alone. Okay. That time 40 volt is replaced by internal resistance. 40 volt is replaced by internal resistance means short circuited. Clear? At a time एक ही सोर्स कंसिडर करना है, उस टाइम दूसरा सोर्स उसको रिप्लेस करना है बाय दैट इंटरनल रेजिस्टेंस. दैट इज 40 वोल्ट है, इट इज वोल्टेज सोर्स मींस इट विल बी शॉर्ट सर्किटेड. अगर ये 40 एम्पियर होता तो क्या होता बताओ? 40 एम्पियर इसको कैसे रिप्लेस करेंगे बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस? हाउ इट विल? ओपन सर्किट. ओके. सो डायग्राम में अभी फिलहाल दो ही वोल्टेज है, कभी कभी करंट सोर्स भी हो सकता है. क्लियर. नाउ 35 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन. उस टाइम हम कौन सा करंट निकाल रहे हैं? I dash through 3 ohm. Okay. So I dash through 3 ohm is
considering which voltage? Is considering which voltage? 35. 35. अभी second case, हाँ? Consider 40 volt. 40 volt is acting alone. Okay, that time 35 volt is replaced by their internal resistance, that is short circuit. 35 volt क्या हो रहा है? Short circuit. Clear? So in superposition theorem, one source will act at a time, other replaced by their internal resistances. Okay. Now in third case, the total current is, अभी second case में कौन सा current मिलेगा? I double dash through which resistor? 3 ohm. Why 3 ohm? Why not 4 ohm? Why 3 ohm? 4 ohm से क्यों नहीं? मैम आपका कैमरा स्टेबल रखो ना, पूरा ब्लर दिख रहा है. ओके ओके, हाँ. Why 3 ohm? 4 ohm से क्यों नहीं निकालने का? Required answer through which resistor? 3 ओम बोला है ना इसके लिए. 3 ohm. Yes. Okay. तो ये I dash 3 ohm. I double dash कौन से वोल्टेज से है? 40 वोल्ट से है. I double dash will be through which voltage? 40 volt. अभी total current क्या आएगा? I dash plus I double dash. ठीक है. फिर लास्ट में इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसका प्लस माइनस होता है. सो दिस इज द स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट है. हाँ, स्टेटमेंट फिर से रिपीट करती हूँ मैं. स्टेटमेंट व्हाट? इन एनी लीनियर नेटवर्क containing more than one sources, the resultant current is equal to algebraic sum of that would be produced by each source acting alone. Clear हो रहा है? Statement clear हो रहा है सबको? Yes? Statement clear हो रहा है? अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा. हाँ, ठीक है. राइट डाउन सॉल्यूशन. केस 1, 35 volt is acting alone. That time 40 volt is short circuited. ये sentence? Yes. Now draw circuit for 35 volt. 35 volt के लिए सर्किट निकालो. फोर्टी वोल्ट को क्या करने का? शॉर्ट सर्किट करने का. ड्रॉ दिस डायग्राम. डन. Yes, ma'am. अभी करंट कहां से निकालना है हमें? 3 ओम. नाउ दिस इज नॉट टोटल करंट. ये 35 वोल्ट का करंट है. इट इज आई डैश. शो दैट आई डैश. लिखा. अभी ये करंट कौन से मेथड से सॉल्व करना है? लिखो साइड में. करंट विल बी from करंट डिवाइडर रूल से फाइंड कर सकते हैं. करंट डिवाइडर रूल, मेश एनालिसिस, मेश और नोडल एनालिसिस, और ओम्स लॉ. will be find out from करंट डिवाइडर रूल, मेश और नोडल. मैम इजी किससे पड़ेगा? इजी सर्किट पे डिपेंड होता है.
मेश भी इजी जाएगा। इसमें कितने मेश है बताओ? 2 कितने मेश है? 2 मेश। अभी मेश के पहले एक सीरीज पैरेलल भी इधर कंसेप्ट लगेगा। ये दोनों कैसे है बताओ? पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल। ठीक है, फिर इसका एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा, बाद में ओम्स लॉ लगाओ इसमें। ठीक है, मेश से पहले ओम्स लॉ इजी है, बाद में मेश, वो सर्किट पे डिपेंड होता है। ठीक है, इट विल बी डिपेंड ऑन द सर्किट। अभी बताओ 2 और 4 ओम क्या है इधर? यस, 2 ohm and 4 ohm पैरेलल parallel. हाँ, tell me answer, parallel answer क्या आ रहा है? आंसर पैरेलल का आंसर क्या आ रहा है? 1.3334। ओके, अभी सर्किट ड्रॉ करो फिर से वो, और ओम्स लॉ लगाओ, फाइंड आउट आई डैश। ड्रॉ किया? कितना आ रहा है आई डैश? यस, आई डैश का वैल्यू कितना आ रहा है? फाइंड किया क्या सबने? मैम 8.08. यस, 8.08। अभी इधर ओम्स लॉ लगाओ, आई डैश इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1.33। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है उसका? 8.08। मिला सबको ये आंसर? नाउ टेल मी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बताओ। Right side. राइट साइड। ठीक है, नाउ सेकंड केस, राइट डाउन। 40 वोल्ट इज एक्टिंग अलोन। उस टाइम 35 वोल्ट क्या होगा बताओ? उस टाइम 34 शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नाउ रीड्रॉ द सर्किट। 40 वोल्ट के लिए सर्किट ड्रॉ करो। थर्टी फाइव विल बी शॉर्ट सर्किटेड, और सिर्फ क्या रहेगा अभी इधर? 40 वोल्ट। ये मेश से सॉल्व करो, ये वाला मेश से सॉल्व करो। हमें रिक्वायर्ड करंट किससे चाहिए? 3 ओम से, सो इट विल बी आई डबल डैश। फाइंड बाय मेश एनालिसिस, ये भी एक मेथड करके देखेंगे। सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, और मुझे I1 बताओ, I1 I2। Minus 3.07 I1. I1 माइनस,
हाँ बराबर है। I1 क्या आया? 0.076. हाँ 0.76। ठीक है, अभी मुझे बताओ माइनस में आया ना ये। हाँ, अभी आई डबल डैश का डायरेक्शन कैसे है? आई डबल डैश टूवर्ड्स राइट साइड, बराबर है। माइनस आया तो कहां पर करेंगे इसको? Left. सबको मिला ये आंसर? ये सबको मिला आंसर? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ अभी लिखो आई डबल डैश इज इक्वल टू I1। कौन सा करंट जा रहा है आई डबल डैश में? आई डबल डैश के लिए कौन सा करंट जा रहा है? I1। ठीक है, इज इक्वल टू -3.06 एम्पियर। ठीक है, अब इसको माइनस से प्लस करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा बताओ? डायरेक्शन क्या होगा? अभी राइट डायरेक्शन था, अभी कहा जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, क्लियर? नाउ थर्ड केस। दोनों सोर्सेस हो गए हमारे, और कुछ सोर्स है क्या इसमें? ये डायग्राम में कुछ सोर्स है इसमें? नो। यस, नो? हाँ, नाउ राइट on third case. Total current is equal to current through 3 ohm, ठीक है, is equal to I dash bracket plus I double dash. This plus is according to statement, ये स्टेटमेंट का प्लस है। नाउ I dash का डायरेक्शन बताओ मुझे, I dash का डायरेक्शन? Right side. राइट साइड। और I डबल डैश का डायरेक्शन? Left. लेफ्ट साइड। दोनों सेम है या डिफरेंट है? अपोजिट है। हाँ, दोनों अपोजिट है, तो ये दोनों माइनस कर रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? माइनस। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इट इज प्लस, बट अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन इट विल बी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी दोनों सब्ट्रैक्ट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? 8.08 माइनस 3.076 आ रहा है? 5.004. 5.04 ना? 004. ओके, हाँ, एम्पियर। नाउ विच वन इज बिगर, लार्जर कौन सा इसमें से? I1 I डैश या I डबल डैश? I dash. I डैश। डायरेक्शन कंसिडर करने का। फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर ही लास्ट का आंसर डिपेंड है। लास्ट आंसर डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस करंट्स। क्लियर? समझ में आ गई ये? यस, यस और नो? ठीक है, टेक डाउन नेक्स्ट नाउ। Find current through 5 ohm resistor by superposition theorem. डायग्राम शेयर हुआ? यस, डायग्राम शेयर हुआ क्या? Yes. हाउ मेनी सोर्सेस? 3. 3। तो टोटल करंट कितने इसका एडिशन होगा? 3. I डैश, I डैश प्लस I डबल डैश I प्लस triple I dash. ट्रिपल डैश। ड्रॉ दिस डायग्राम।
मैम अटेंडेंस हो गया। हाँ हो गया। मैम रोल नंबर क्या 60 प्रेजेंट, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा सा। रोल नंबर 60? And ma'am हाँ है। 63 पण. हाँ 63 लावला अटेंडेंस. मैम 26। 26 भी प्रेजेंट है. मैंने अटेंडेंस ओरली नहीं लिया. आप जब इन होते हैं मैम ना तब 14। ले. 14 प्रेजेंट. Ma'am 40. 40 पण प्रेजेंट. मैम 5। रोल नंबर 5 लेट ज्वाइन किया क्या? नहीं मैम एब्सेंट हो। मैम आप एब्सेंटी नंबर्स बताओ ना। हाँ मैम। डायग्राम ड्रॉ किया? यस मैम। यस मैम। मैम जो एब्सेंट है वो तो बताओ। दिखा क्या? देखा? Yes ma'am. जब आप इन होते हैं ना तभी अटेंडेंस लिया जाता है. ओरली लेने के लिए टाइम लगता है ना. अभी इधर देखो. हाउ मेनी सोर्सेस हियर? 3। कितने सोर्सेस है? 3. तो सुपरपोजिशन अप्लाई होगा इसमें. Yes. Now our final current is through which resistor? 5। 5 ohm. ठीक है, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम. अभी एक एक कंसिडर करेंगे. हाँ, नाउ देयर इज नो नीड टू कंसिडर फर्स्ट 50 वोल्ट. हम 4 एम्पियर भी ले सकते हैं, हम 36 वोल्ट भी ले सकते हैं. किसी का आई डैश 4 एम्पियर से रहेगा तो किसी का 36 वोल्ट का रहेगा आई डैश, तो किसी का 50 वोल्ट. सो देयर इज नो नीड टू फॉलो द सीक्वेंस. आप कभी भी कोई भी ले सकते हो. ठीक है. सो फर्स्ट बताओ कौन सा लेंगे हम? 50 volt. फर्स्ट कौन? 50 वोल्ट. ओके, सो राइट डाउन सॉल्यूशन. 50 वोल्ट is acting alone. That time 4 एम्पियर कैसे रिप्लेस होगा? Open circuit. 4 ओपन सर्किट. 36 वोल्ट Short circuit. शॉर्ट सर्किट. ठीक है. नाउ ड्रॉ सर्किट फॉर 50 वोल्ट. ये ओपन हो गया. ये शॉर्ट हो गया. कौन से 5 से निकालना है तो ये हम कंसिडर करेंगे आई डैश. ठीक है. हाँ, बिफोर मेश एनालिसिस और कुछ मेथड है क्या इससे सॉल्व कर सकते हैं हम? कोई मेथड है? मैम सीरीज पैरेलल ले सकते हैं। यस, सीरीज पैरेलल. ये दोनों कैसे बताओ? 20 एंड 10 Parallel. पैरेलल. हाँ, और बाद में ओम्स लॉ लगा दो. 20 पैरेलल 10. क्या आंसर आ रहा है? 6.67 एम्पियर ओम. 6.67 ओम. मैम 66 ठीक ही है. आएगा। 66. ठीक है. 50 वोल्ट 5 ओहम और 6.66. आगे भी डिजिट लेने का. एटलीस्ट टेक 3 डिजिट फ्रॉम डेसिमल पॉइंट. आई डैश. डू बाय ओम्स लॉ. मुझे आई डैश बताओ क्या आ रहा है?
I dash 4.28 ampere. Yes. Direction. 4.5. Direction left Direction. side. Left side. फिर से Right देखो side, डायरेक्शन. Sorry, Right sorry, side. right side. Right side. राइट साइड. ये आंसर है ना. डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बताना ही है डायरेक्शन. सेकंड. हाँ चलो सेकंड कौन सा लेंगे आप बताओ. 4 ampere. 50 हो गया. 4 एम्पियर. 4 एम्पियर is acting alone. 50 वोल्ट क्या होगा. 50 एंड 36 वोल्ट शॉर्ट सर्किट. दोनों भी शॉर्ट सर्किट. कंबाइंड सेंटेंस लिख के बता दो. 50 वोल्ट एंड 36 वोल्ट शॉर्ट सर्किटेड. 50 को शॉर्ट किया. show current here. I double dash. मैम वो जो 50 वोल्ट का केस लिया था उसमें ओपन सर्किट कंसीडर नहीं करेंगे क्या, क्योंकि फिर वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा ना. 50 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट करने का. इट इज वोल्टेज सोर्स. प्रीवियस वाला. हाँ प्रीवियस में क्या. मैम उसमें हाँ. ओपन सर्किट है ना, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा ना. ये वाला. हाँ मैम. ये वाला. यस. ये सर्किट अभी ऐसे बना. ये ओपन हुआ सिर्फ. क्लियर. ये सर्किट ऐसे बन गया. पूरा ओपन नहीं हुआ, सिर्फ ये 4 एम्पियर ओपन हुआ. पूरा सर्किट ओपन नहीं हुआ. हाँ ठीक है. चलो कौन से मेथड से करेंगे ये बताओ. सुपर मैश. सुपर मेश. पहले ये 20 और 10 को क्या करेंगे. Parallel. पैरेलल. उसका आंसर ऑलरेडी है हमारे पास. कितना है उसका आंसर. 6.667. यस 6.667. ये आ गया. अभी मुझे बताओ कौन से सॉल्व को सुपर मेश के बजाय हम करंट डिवाइडर रूल यूज करेंगे. ये दोनों रजिस्टर कैसे है. 5 और ये 6.66 पैरेलल है और एक करंट सोर्स है अपने पास. तो करंट डिवाइडर रूल लगेगा क्या. दो रजिस्टर पैरेलल है और सोर्स है. Yes. तो करंट डिवाइडर से हम कर सकते हैं इसको. किसी किसी को टफ जाता है तो इससे सॉल्व करके देखेंगे हम. ठीक है. सो व्हाट इज करंट डिवाइडर रूल. करंट डिवाइडर रूल क्या है बताओ. टोटल करंट. ये सर्किट के लिए टोटल करंट कौन सा है. 4. 4 एम्पियर. 4. इसके अपोजिट 5 ओम के अपोजिट कौन सा रेजिस्टर लगा है. 6.667. 6.667 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेजिस्टेंसेस 5 प्लस 6.667. ठीक है. हाँ बताओ मुझे आंसर उसका क्या रहा आंसर. मैम 2.2862. 2862. यस 2862 एम्पियर. अभी डायरेक्शन देखो. ये 4 एम्पियर का डायरेक्शन कैसे है बताओ. अपवर्ड. अपवर्ड. अभी इधर घुमाओ. क्या आ रहा है इसका डायरेक्शन. आई डबल डैश Left direction. लेफ्ट साइड. इसलिए मैंने पहले डायरेक्शन नहीं बताया. ये था आई डबल डैश. सो आई डबल डैश डायरेक्शन इज लेफ्ट साइड. मैम राइट में नहीं जाएगा. राइट में नहीं जाएगा. इधर राइट में जा रहा है. 6 के लिए राइट में जा रहा है. 4 के लिए लेफ्ट में जाएगा. ओके. 5 के लिए. क्लियर. समझ में आ गया सबको ये.
ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कौन सा बचा बताओ, 36 वोल्ट कौन सा वोल्टेज? 36 वोल्ट, राइट ऑन। 36 वोल्ट is acting alone. 50 वोल्ट क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। यस, और 4 एम्पियर ओपन। ओपन सर्किट। ड्रॉ द डायग्राम फॉर 36 वोल्ट। हो गया? आई ट्रिपल डैश 5 ओम से आई ट्रिपल डैश बताओ। यूज मेश एनालिसिस, मेश 1 एंड मेश 2। मेश अप्लाई करो और मुझे आई डैश वैल्यू बताओ। मैम I1 -2.05 है। यस, -2.05। ये आंसर आया? यस मैम। कोई तो भी मुझे 36 डिवाइडेड बाय 14 बताओ। 36 डिवाइडेड बाय 14 2.57 2.57 या 0.57 क्या आ रहा है? 2.57 आ रहा है। 2.57 हो गया आंसर। मेश एनालिसिस आंसर इज -2.057। बराबर है? यस। हाँ, अकॉर्डिंग टू मेश करंट इसका डायरेक्शन कहा दिया था हमने? अकॉर्डिंग टू मेश करंट टुवर्ड्स राइट साइड। अभी ये माइनस आया तो क्या करेंगे, इसको हम प्लस करके क्या करेंगे? लेफ्ट साइड। डायरेक्शन चेंज। लेफ्ट साइड। ठीक है, सबके डायरेक्शन हो गया। नेक्स्ट लास्ट केस, टोटल करंट इज इक्वल टू आई डैश प्लस आई डबल डैश प्लस आई ट्रिपल डैश। मुझे आई डैश का डायरेक्शन बताओ। आई डैश डायरेक्शन राइट साइड है या लेफ्ट साइड? राइट साइड। हाँ, आई डबल डैश लेफ्ट और आई ट्रिपल डैश लेफ्ट। कौन से दो सेम है इसमें से? आई डबल डैश एंड आई ट्रिपल डैश। यस, और ये वाला डिफरेंट है, अपोजिट है ये, तो ये दोनों का एडिशन लो। ठीक है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा इसमें से मैच करो ये।
क्लियर? लास्ट कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबको? टेक द एडिशन ऑफ आई डबल डैश एंड आई ट्रिपल डैश। जो भी आंसर आएगा वो आई डैश से माइनस करो। लास्ट आंसर बताओ क्या है? -0.631। माइनस माइनस है प्लस है? माइनस है मैम। माइनस है। इसमें से लार्जर कौन सा है? हाँ, माइनस है। मैम 36/14 2.57 एम्पियर आ रहा है, 2.057 नहीं आ रहा। ओके ओके, हाँ मैंने वो ऐसे ही पूछा था, अदर मेथड से करने का ट्राई किया था। हाँ, क्या आ रहा है इसका आंसर? लास्ट आंसर पॉइंट, -0.063। डायरेक्शन बताओ। लेफ्ट, पक्का लेफ्ट है? यस मैम। राइट। राइट साइड रहेगा। माइनस है तो राइट साइड है। हाँ, ठीक है। इसको प्लस करके क्या करो, एम्पियर लेफ्ट डायरेक्शन कर दो। क्लियर? आंसर क्लियर हो रहा है क्या? लास्ट में क्या कर रहे हैं हम? ये देखो, मुझे आई डैश का आंसर बताओ क्या है? 4 पॉइंट क्या है वो? 28। ठीक है। अभी ये आई डबल डैश का आंसर क्या था? 2.286 प्लस कितना है? 2.057। ये दोनों का एडिशन करके देखो, ये दोनों का एडिशन बताओ क्या आ रहा है? यस, 4.33। 33। इसका डायरेक्शन है लेफ्ट वाला और इसका डायरेक्शन है राइट वाला। हाँ, अब ये दोनों अपोजिट है तो माइनस लेना पड़ेगा हमें। हाँ, माइनस लेना पड़ेगा। तो क्या आंसर आ रहा है बताओ? माइनस लेके 0.06। 0.06। अब इसमें बिगर कौन सा है? 4.3। हाँ, तो डायरेक्शन कौन सा आएगा? लेफ्ट। क्लियर? माइनस साइन है ना? ये पहले आपने ये जो डायरेक्शन बताया ना, वो राइट डायरेक्शन के हिसाब से लिया था। ओके मैम। एम्पियर। क्लियर? एक लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे। Write down, find current through 30 ohm resistor. By superposition theorem. Draw this diagram. मैम वो 10 वोल्ट के साथ क्या लिखा है? Ohm. दोनों लिखने का कि एक ही लिखने का? दोनों लिखने का, उसका कंसेप्ट है, बताती हूँ मैं। दोनों लिखो। मैम वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। यस, इंटरनल रेजिस्टेंस 10 वोल्ट का।
डन हो गया? Yes, ma'am. अब इधर देखो, रिक्वायर्ड आंसर कौन से रेजिस्टर से है? 30 ohm. 30 ओम, ठीक है, 30 ओम, आई 30 ओम। अभी ये थोड़ा सर्किट डायग्राम अलग दिया है। एक बैटरी दिया है 10 वोल्ट का, उसके साथ ऑब्लिक में 10 ओम दिया है, मींस दिस 10 ओम इज इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, वो उसके सीरीज में लगाना होता है। अभी ये 10 वोल्ट है, उसके सीरीज में क्या लगाना है? 10 ओम। ओके, बट ऐसे न दिए बगैर उन्होंने ऐसे दिया है 10 वोल्ट ऑब्लिक 10 ओम, हमें वो रीड्रॉ करना पड़ेगा अभी सर्किट, ठीक है। 10 वोल्ट के सीरीज में 10 ओम, कोई भी वोल्टेज के साथ उसका रेजिस्टेंस दिया तो हमेशा सीरीज में लगेगा वो, वोल्टेज के सीरीज में। अभी करंट का रेजिस्टर दिया, करंट का वैल्यू कितना है इधर? डाउनवर्ड 2 एम्पियर, उसके साथ उसका रेजिस्टर दिया है, तो उसके साथ रेजिस्टर दिया तो हमेशा पैरेलल में लगेगा। कैसे लगेगा? पैरेलल में। करंट के साथ रेजिस्टर दिया तो पैरेलल में जाएगा, और वोल्टेज के साथ रेजिस्टर दिया तो वो सीरीज में जाएगा। क्लियर होगा कंसेप्ट? यस। 10 वोल्ट के साथ 10 ओम दिया तो वो कैसे लगाओगे आप सर्किट में? सीरीज में या पैरेलल में? Series में. सीरीज में। और करंट सोर्स के साथ एक रेजिस्टर दिया है तो वो कैसे लगाओगे? Parallel. पैरेलल। ओके, ये क्वेश्चन दिसंबर 15 में पूछा गया, 2015 में। नाउ रीड्रॉ द सर्किट, रीड्रॉ द सर्किट। 10 वोल्ट ड्रॉ करो, उसके सीरीज में 10 ओम ड्रॉ करो, सीक्वेंस चेंज मत करो, हाँ, एक के बाद ड्रॉ करो। होगा ड्रॉ? ड्रॉ किया? Yes, ma'am. हाँ, हाउ मेनी सोर्सेस हियर? कितने सोर्सेस है? 3. 3। तो कितने ये स्टेप्स बनेंगे? हाउ मेनी स्टेप्स विल बी देयर? 3. 3, आई डैश, आई डबल डैश एंड आई ट्रिपल डैश। और फोर्थ स्टेप में टोटल करंट आएगा। फोर्थ स्टेप में क्या आएगा? टोटल करंट। टोटल करंट कौन से रेजिस्टर से पूछा गया है? 30 ohm. 30 ओम। ठीक है, चलो एक एक कंसिडर करेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, 10 वोल्ट एक्टिंग अलोन, दूसरा 2 एम्पियर क्या होगा? 2 एम्पियर क्या होगा उस टाइम? Open. Open circuit. ओपन। और 100 वोल्ट? Short circuit. ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर 10 वोल्ट।
डन, Yes, डायग्राम ma'am. हो गया। चलो Yes. आई डैश कहाँ पर बताना होगा हमें, आई डैश कहाँ पर बताएंगे हम, बताओ। आई डैश 30 ओम के उधर। 30 यस वो 30 ओम। डायरेक्शन कोई भी लो, माइनस आए तो चेंज करो डायरेक्शन, ठीक है। कुछ रिड्यूस होगा सर्किट मेथड लगाने के पहले, यस मैम यस मैम। कैसे कैसे रिड्यूस होगा? 20 और 2 पैरेलल है। यस 30 नहीं, 20 and 2 20 are in बोला। parallel. Yes 20 parallel 2, आंसर क्या है? 1.82 ओम। 82। बाद में मेश एनालिसिस Yes, ma'am. लगाओ। यस बाद में मेश एनालिसिस लगाओ। 1.2 ओम। थ्योरम के लिए सब कंसेप्ट क्लियर चाहिए, मेश एनालिसिस, स्टार डेल्टा। टेल मी आई डैश। डन। रोल नंबर 20, रोल नंबर 20 है क्या? रोल नंबर 45। यस मैम। हाँ मुझे आई डैश का आंसर बताओ मेश करंट से। लग रहा हूँ मैम। कर रहे हो? मैम अभी प्रैक्टिकल है। हाँ मैम। 3 बजे ना? यस मैम। हो जाएगा हमारा। मैम पर लेक्चर तो 250 तक ही था। अच्छा ठीक है। आई डैश का तो आंसर बताओ, फिर बाद में करो आई डबल डैश आई ट्रिपल डैश। 0.731 है क्या मैम? एक मिनट, आई डैश ना? नहीं, यस मैम 10 वोल्ट ले रहे हैं ना हम। क्या आंसर बोला? 0.17322 यस आई डैश इज इक्वल टू 0.173 ना? हाँ डायरेक्शन बताओ। राइट। राइट साइड राइट साइड, ठीक है बराबर है। अभी आंसर लिख लो, बाद में घर पे करो। सेकंड लेंगे 2 एम्पियर। 2 एम्पियर से आई डबल डैश, 2 एम्पियर का आई डबल डैश 0.35। आंसर्स लिख लो घर पे, बाद में करो। अब लिख लिया आंसर आई डबल डैश? Yes, ma'am. क्या अभी कौन सा बचा है? 100 वोल्ट ना? Yes, ma'am. 100 वोल्ट के लिए आई ट्रिपल डैश 2.36 एम्पियर लेफ्ट साइड, एंड टोटल करंट 30 ओम से 2.54 एम्पियर। हो गया? नोट डाउन किया? यस मैम ठीक है। कल एसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। हाँ? आज ये चैप्टर खत्म हो गया।
Okay, thank you. शूट करना है। सबसे पहले तो आप लोग को अपने मोबाइल को उल्टा कर देना है ताकि वीडियो थोड़ा सा लो एंगल में बने। उसके बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो मॉडल रहेगा वो रिवर्स में चलेगा एंड मॉडल के पैर के पास वो सारे पत्ते को गिराना है जो हम लोग ने सूखा पत्ता ले रखा था। एंड गिराते वक्त ध्यान देना कि आप लोग का हाथ फ्रेम में ना आ जाए, वरना आप लोग की वीडियो में मजा नहीं आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना है जैसा कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब रिकॉर्ड करने के बाद ये वीडियो को रिवर्स कर देना है एंड रिवर्स करने के बाद अब जो वीडियो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ एकदम ध्यान से देखना।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम वो जीआर गुड नंबर फिर आफ्टरनून मैम। कहाँ से देना है? गुड आफ्टरनून टू ऑल। थक गए क्या सब लोग आज? यस मैम। यस मैम। जल्दी खत्म कर। सुबह 8 बजे से लेक्चर है। 8 बजे से? नहीं मैम, नहीं मैम। कौन से लेक्चर दे रहा था? 9 बजे मैम, 9 बजे से 8 से। किसका लेक्चर था 8 बजे? मैम 9 बजे से 8 बजे से। आप? वो 8 बजे से क्लासरूम में बैठा था। 8 बजे से क्लासरूम में बैठे थे? मैम मेरे को तो ऐसा बाबूराव का मोटा मोटा चश्मा लग गया मैम, मोबाइल में देख देख के। हाँ मैम, मेरे को भी लग जाएगा जल्दी से। मैम मेरे को तो ऑलरेडी चश्मा है, मेरा नंबर बढ़ जाएगा। मैम मुझे पढ़ना है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। टॉपिक क्या है आज का? मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं सुन रही हूँ। मैम मेरे को हो रहा है। जैसे काट। मैं दो दो मैम डेली मैम नवीद का प्रोफाइल देखो मैम, नवीद का प्रोफाइल। अरे वो तुम लोगों का जीआर नंबर था, ये काम कर रही हूँ, 2 मिनट रुको। मैम नवीद का प्रोफाइल देखो। हाँ? नवीद का प्रोफाइल देखो मैम। हैरत में नहीं है, घंटा ही नहीं रखा कुछ। ये नाविद ना, इसको मैं निकाल देती हूँ अभी मीटिंग से। रुको, अभी सबका प्रोफाइल चेक करती हूँ, निकाल देती हूँ मीटिंग से। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ये कौन सा चश्मा लगा है भाई? चश्मा लग गया मेरे को भाई। ये तो अंधों का है, ये तो अंधों का है भाई। आंखें निकल रही है तेरी। मैम प्रथम इसका भी प्रोफाइल देखो। एआई का लिस्ट बना दिया अरे है। मैं ही हूँ, ए बस थोड़ा चुप फिल्टर बैठो, वगैरह लगाया मैंने। चुप बैठो, क्या मैम? चुप बैठो थोड़ी देर। ओके मैम। एक लिस्ट मेरा रेडी हो गया है एआई का, और दूसरा जो लिस्ट है वो है हमारा ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स का। इसमें बहुत कुछ है ना, वो डिलीट करती हूँ। आपका कैप राउंड है, उसके बाद बहुत कुछ मेंशन है यहाँ पे, मार्क्स वगैरह वो सब डिलीट करती हूँ। जिसकी जरूरत नहीं वो डेटा आपके पास नहीं आना चाहिए।
चलो लिस्ट बन गया है आपका। अभी कॉलेज से मेल आया है जीआर नंबर का। मैम वो इंटर्नशिप का क्या है? अरे वो मैंने भी टाइम ही नहीं सारा रीड करने के लिए। मैं भी कंटिन्यू 11 बजे से मेरे लेक्चर्स है, सिर्फ बीच में एक एक घंटा टाइम मिला मुझे, तो मैंने रीड नहीं किया। बट वो जो है ना, उससे आपको इंटर्नशिप में काम आएगा, ऐसा मतलब बच्चों को फायदा है उस चीज का। जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लो। कितने एक्सपेरिमेंट किया आपने? 7 C2 बैच। मंडे वाला बैच कौन सा है? मंडे को कौन से बैच थे? C3। हेलो। मैम उसके लिए जीआर नंबर चाहिए ना शायद से। अब आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। हाँ, अरे मैं बोल रही थी कि जीआर नंबर का ही काम कर रही हूँ। अभी जस्ट मेल मिला है मुझे। उस मेल में ओ, सारे बच्चों का नाम है ना, तो अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनका मैंने सेपरेट किया है लिस्ट। अभी उसका वो लिस्ट मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है। हाँ, तो ये जीआर नंबर मिलने के बाद जो भी कुछ है ना, रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन कर डालो, जो भी है फायदा ही होगा उस चीज का। हमें कोई भी चांस मिस नहीं करना है। जो भी कुछ कॉलेज मैम से आता है। हाँ बोलो। वो मेल आईडी भी नहीं मिला अब तक। अरे मैंने बात की है, लेकिन देखो ना, वो लोग सुनते ही नहीं। अच्छा, मुझे याद दिलाया करो बीच बीच में, जरा मैं भी भूल जाती हूँ। एक बार ओके। मैंने कॉल करके बोला था उनको। बस 1-2 मिनट का काम बाकी है, अभी पीडीएफ बना के भेज देती हूँ आपको। पेपर भी बाकी है चेक करना, मतलब भूल ही गई पेपर चेक करने हैं।
हाँ हेलो, कितने एक्सपेरिमेंट किए बैच C1 C2? अच्छा EDTA का किया है आपने ना, C1 C2 का। एंड व्हाट्स अबाउट C3 बैच? C3 बैच परफॉर्म 3 एक्सपेरिमेंट। यस मैम। ठीक है, अभी पहली बात क्या है कि हमारी कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होती है, ठीक है? तो इसलिए जिन्होंने नहीं किया किया कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू कंप्लीट द राइटिंग वर्क। राइटिंग वर्क जो भी है वो हमें करना है, बिकॉज आपको कितने मार्क्स से पता है ना टर्म वर्क के? हाँ, टर्म वर्क के आपको 25 मार्क्स है, ठीक है? तो टर्म वर्क में ये सारा प्रैक्टिकल वगैरह इंक्लूड होता है। अभी आपका तो मतलब जो जो भी रहेगा ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसका। वी हैव टू परफॉर्म टोटल 5 एक्सपेरिमेंट, अपने सिलेबस में 5 एक्सपेरिमेंट है एंड वी हैव कंप्लीटेड 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अब जिनके नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वाटर का सबका हो गया है एक्सपेरिमेंट? वाटर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, अभी जो बिल्कुल भी नहीं आ पाए मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, तो उनके लिए क्या एक बार बता देती हूँ। ऑलरेडी वी हैव लर्न द प्रिंसिपल ऑफ EDTA मेथड, वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ EDTA मेथड, बराबर ना? सिर्फ आपने देखा नहीं, प्रैक्टिकल परफॉर्म